जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हम मांगे तो क्या काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते 17-18 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का 24वां महाधिवेशन हुआ। इस महाधिवेशन में देश भर से आए हजारों लोको रनिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया, जो अपने एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का चुनाव किए। उनके द्वारा चुने गए नए पदाधिकारियों से विकल्पवाणी टीम ने विस्तार से बात किया और उनकी तमाम समस्याओं को जानने की कोशिश की। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। For human ability, it is desired that he can perform well in a continuous nature of duty for 8 hours a day. And if the workload is more, physically or mental, he cannot work more than 6 hours. So, internationally, employees are being classified as two categories. One is continuous category and another one is intensive category. In intensive category, the maximum duty limit is 8 hours and daily duty hours should be restricted to 6 hours. In a loco pilot's duty is very, very serious and the workload is too much. Every minute is very important in their duty. Because of that, this Regional Labour Commission of Chennai has declared that this duty is intensive in nature. But Railway Administration is delaying implementation through court cases and all. That is why we are demanding this duty hours of coaching trains must be limited to 6 hours and that of goods trains should be limited to 8 hours, because our duty is mostly the safety of the railways is depending on the efficiency of the loco pilots. So limitation of duty to 8 hours bar 6 hours is very much essential for the safety of the railways. That is why we are demanding limitation of duty with 6 hours and 8 hours. जापान में एक रिसर्च हुआ है, एक जूते कारखाने में वहाँ का मालिक जो है 8 घंटा के बदले 6 घंटा ड्यूटी किया, बांध दिया पूरे मजदूरों के लिए कि 6 घंटा ड्यूटी करना है। 6 घंटे में देखा गया कि पहले जो 8 घंटा करने के बाद जो प्रोडक्शन होता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन 6 घंटा में हो गया। ज़्यादा काम कराने से मनुष्य का एबिलिटी घटता है और जिस तरह से का प्रोडक्टिविटी उत्पादन देखा गया घंटा कम करने से उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो हमको देश में हम ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से 1973 से हम लोग ये डिमांड करते आ रहे हैं कि हमारी ड्यूटी जो है 8 घंटा गुड्स ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में 6 घंटा इंसेंटिव घोषणा करके, ताकि ट्रेन सुरक्षित चले। हाल फिलहाल जो 2-2, 3-3 बड़े एक्सीडेंट हुए सिर्फ कुछ महीनों के अंदर, उसका मुख्य कारण है ट्रैक मेंटेनेंस ठीक नहीं है। सिग्नल डिपार्टमेंट को जिस तरह का ट्रेनिंग देना चाहिए ट्रेनिंग ठीक नहीं है। असिस्टेंट ड्राइवर का ट्रेनिंग का पीरियड घटा दिया गया है और सिग्नल सिस्टम, ट्रैक सिस्टम, ये सब का सब प्राइवेट में दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में 3,17,000 वैकेंसी है, जिसमें इमरजेंसी ग्रुप में 1,85,000 वैकेंसी है। हमारे लोको रनिंग में, रनिंग कैडर में, लोको रनिंग के कैडर में करीब करीब 18,000 वैकेंसी है। यहाँ 68 डिवीज़न है। 68 डिवीज़न में हर महीने 2 से 3 रनिंग स्टाफ रिटायर कर जाता है, यानी साल में 250 से 300 रनिंग स्टाफ रिटायर कर जा रहे हैं, लेकिन साल में 3 रनिंग स्टाफ भी नया अपॉइंटमेंट नहीं होती है। Dignity in life of every government employee during his old age is the responsibility of the government. That is why pension system is introduced. While introducing the NPS, the government said that this is introduced to ensure that the entire aged people in India should get pension. That is why they have made this new pension scheme as a national pension scheme, and anybody can join that system. So it is the responsibility of the government
to ensure a dignified life after retirement of a 60 or more. So our existing OPS system is guaranteeing that what pension they will get. But in OPS, they have, by introducing the NPS, they have imposed a 10% cut in their salary. It is an arbitrary cut. The Commission has recommended, the government has accepted the pay scales, and by introducing this NPS, a 10% salary cut was imposed. And they are not being guaranteed with a defined pension. Their contribution is only defined. And our experience is that there are so many people who are getting a pension of 1,000 rupees, 2,000 rupees, etc. That is why we demand this old pension scheme should be restored. The reason they are saying that financial problem of the government. If we see, lakhs and lakhs of crores of rupees are being given to the corporates in different names, in waiver, tax waiver, writing of loan, etc. In the last 10 years, it is being calculated that more than 10 lakh crores has been given to the corporates. Only a 10% is not required for giving pension to the entire old aged people in India. पेंशन देने से आर्थिक बोझ जो है जनता पर पड़ेगा, एकदम गलत है। 57 बरस से आज़ादी के बाद से 1948 में पहला पे कमीशन जो है ओपीएस लागू किया था, ओल्ड पेंशन। इसका एक्चुअली नाम है डिफाइंड पेंशन। 1957 से 1957 से रेलवे में पेंशन लागू है। ये पेंशन और जो यूपीएस आई टीवी स्वामीनाथन के कमेटी जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने जो रिकमेंड किया है टोटल कॉरपोरेट जगत का इंडिकेशन को देते हुए ये मैंने रिपोर्ट दिया है। ओल्ड पेंशन और ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन में देखिए हमारा मूल वेतन का 50% या हम जिस रोज रिटायर कर रहे हैं उससे 10 महीना पीछे जाकर उसका एवरेज आएगा। दोनों में जो सबसे ज़्यादा होगा वो पेंशन के रूप में होता है। लेकिन यहाँ यूपीएस में है कि 6 महीना करके दोनों का एवरेज निकालेगा। 50% नहीं होता है, 47% होता है। ये गलत प्रचार है। दूसरी चीज़, कोई क्वालिफाइंग मिनिमम सर्विस 10 ईयर्स किया गया है और 10,000 रुपया दिया गया है। 10,000 रुपये पेंशन लागू की गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल ओल्ड पेंशन के तहत 9,000 पेंशन मिनिमम पेंशन है, उस पर डीए देकर 14 से 15,000 रुपये मिलता है, एक विधवा को बोलिए या एक ग्रुप डी स्टाफ को बोलिए। इसमें और कमी है कि हमारा 10% काटा जाएगा, कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, लेकिन वो पैसा पूरे सर्विस पीरियड में सिर्फ 5 महीना का मूल वेतन के रूप में रिटर्न होगा। जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है विथ इंटरेस्ट 8.5 पूरा इंटरेस्ट के साथ हमको हमारे रिटायरमेंट में वो हमको रिटर्न किया जाए। दूसरी चीज़ कि अगर कोई किसी भी कारण से किसी का माने शारीरिक अवस्था बहुत ख़राब है, वो काम करने के योग्य नहीं है, मान लीजिए वो एक्सीडेंट में उसके एक पैर चली गई या एक्सीडेंट में अपंग हो गया, काम करने के योग्य रेल में नहीं है, या किसी भी कारण से कैंसर हो गया या कोई भी कारण से पारिवारिक कारण से अगर वो 25 वर्ष बाद वीआर देता है, मान लीजिए वो सर्विस में 25 वर्ष में आया है, अब 25 वर्ष बाद वो वीआर दे रहा है, यानी 50 वर्ष सर्विस होगा, 50 वर्ष हुआ तो उसको पेंशन के लिए 10 वर्ष वेट करना होगा। ये यूपीएस में है 10 वर्ष वेट करना होगा। हम क्यों वेट करेंगे? हमारी अवस्था खराब थी बोलकर हम पेंशन ये वीआर दिए, जब वीआर दिए तो हमको पेंशन स्टार्ट करो, लेकिन नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। 10 बरस हम वेट क्यों करेंगे? दूसरी चीज़, ओल्ड पेंशन में अगर माँ बाप मर गया, वाइफ हस्बैंड अगर किसी मर गए तो उसका अगर यूडो लड़की है उसको पेंशन मिलता था, अगर यूडो सिस्टर है तो मिलता था, डिपेंडेंट सिस्टर है मिलता था, अनमेरिड लड़की है मिलता था, अपंग लड़का है 80% अगर ये है क्या बोला जाता है उसको हैंडीकैप्ड है तो उसको भी पेंशन मिलता था, मिनिमम 9,000 पेंशन, जो इसमें नहीं आएगा।
मेडिकल सिस्टम इसके साथ इंकरेज नहीं है। दूसरी चीज़, यूपीएस को डीए के साथ लिंक किया है, लेकिन पे कमीशन में रिवाइज होगा कि नहीं इसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। कहाँ पे कमीशन जब भी होगा तो ये जो है यूपीएस भी रिवाइज होगी। The privatization policy is for the corporates, not for the common people. These assets of the government is being allowed to the corporates to exploit the poor people. That is happening. That is why in the era of LPG, that is new economic policy, these rich people are becoming richer and the poor people are becoming poor. As statistics know, the poverty level in India is increasing. Unemployment is increasing. So, the privatization is not giving any benefit to the common people, but it is only for the benefit of the corporates. The corporates are succeeded in managing the governments for their benefit. That is why privatization is going on, and in no way the government or the common people is benefited out of privatization. किसी भी सरकारी संस्थान का निजीकरण करने से सीधा सीधा एकदम सहज तरीका है, ये कारपोरेट के बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत से कल कारखाने, जैसे ट्रेन प्राइवेट में दिया तेजस लखनऊ टू दिल्ली, हम सिग्नल हमारा, ट्रैक हमारा, आदमी हमारा, लोको पायलट हमारा, गार्ड हमारा, सब कुछ मेरा, पूरा सिस्टम मेरा, लेकिन इसका लाभ कौन ले रहा है? प्राइवेट से तो बहुत घटा है। रेल, आज जो रेलवे में इतनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, देखिएगा जितनी भी एक्सीडेंट, एक साल में 170 डिरेलमेंट हुआ रेल का, तो उसका मुख्य कारण ट्रैक मेंटेनेंस ठीक नहीं है। ट्रैक मेंटेनेंस 3,57,000 के लगभग सेंशन ऑफ पोस्ट है, किंतु ऑन रोल 2,35,000 से 40,000 का लगभग ट्रैकमैन है। ये लोग को ट्रैकमैन के जिस तरह से काम करना चाहिए, एक नियम है कि लाइन बैठाने में 33 मिलीमीटर डीप स्क्रीन करने के बाद उस पर गिट्टी, उसके बाद फिर गिट्टी, उसके बाद स्लीपर देकर ट्रैक बैठाना चाहिए, जो मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसके कारण बराबर डिरेलमेंट हो रहा है। दोस्तों, अभी आपने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की जुबानी भारतीय रेलवे में हुए बदलाव और रेलवे मजदूरों की परिस्थितियों के बारे में सुना। देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे करोड़ों यात्रियों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण और उदारीकरण के नाम पर जो बदलाव सरकार ला रही है, उससे न केवल रेलवे के मजदूरों के हालातों पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि आम यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। मिसाल के तौर पर आज लोको पायलट से लगातार 16 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें हर सेकंड एकाग्रता से काम करना होता है, जिसके लिए उनकी ड्यूटी को 6 घंटे तक सीमित रखने के मानक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैक के रखरखाव और सिग्नल के रखरखाव में कटौती की जा रही है। इसका परिणाम है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यात्रियों और रेल मजदूरों को जोखिम में डाला जा रहा है। पैसा बचाने के लिए क्या सरकार को यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना क्या उचित है? रेलवे सुरक्षा की परिस्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज।